ज्ञान अदब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। शुरू करने के पहले मैं सभी को गणेश चतुर्थी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम हिंदी दिवस मनाएंगे। आज हमारी मुख्य मेहमान प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर मीरा कांत है। वह दिल्ली में रहती हैं और वहीं से आज हमारे साथ हाजिर होगी। नमिता प्रकाश जो ज्ञान अदब की मेंबर है, उनके साथ बातचीत करेगी। As you all know, Gyanadab is a registered charitable trust which has as its main mission and vision to celebrate literature, art, and culture without the constraints of politics, activism, and religion. We conduct programs in Gyanadab, and during the program, we request our patrons to donate to our sister charitable trust, Nityasha Foundation, which is a medical NGO and works for children with type 1 diabetes. Presently, we take care of 124 poor children who have type 1D and provide them medical aid and all the necessary support to visit doctors, conduct pathology tests, and we give continuous guidance to these children and their caretakers so that these children can have an equal opportunity to excel in life just as other normal children. We request you to donate generously. The necessary links, and I'll just put the links on for all of you. So the necessary links are there on your screen for you to donate. This is for the Give India link. And during the program, we'll be putting these links in the chat box for all your benefits, for all of you to donate generously. अब मैं सबका परिचय कराता हूं मीरा कांत जी से। मीरा कांत जी, आपको मेरा नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको हमारी शुभकामनाएं। For more than 2 decades, Dr. Meera Kant ji has endeavored to bring to center stage the muffled voices of the marginalized through her fiction, plays, and occasionally long poems and articles. The strife-torn woman in search of her identity and the less fortunate, left out of the mainstream of the society, is a recurring theme of her literature. Meera Kant's creative journey has traversed the undulating inner world of the ever-struggling woman and the stumped ordinary mortals, bereft of the right to live with dignity. The text and subtext of her writings give vent to the unsung and unheard dirge of the hapless miserable, which in turn transforms itself into haunting reverberations in the psyche of the readers. Meera Kant ji has been the recipient of many awards. Some of them include पुरस्कार मिले, मोहन राकेश सम्मान 2008 जो उन्हें मिला साहित्य कला परिषद की तरफ से उत्तर प्रश्न नाटक के लिए, साहित्यकार सम्मान 2005-2006 हिंदी अकेडमी से मिला, अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति पुरस्कार 2004 तथा किम उपन्यास के लिए मिला, मोहन राकेश सम्मान 2003 साहित्य कला परिषद न्यू दिल्ली से नेपथ्य राग नाटक के लिए, सेठ गोविंदास सम्मान 2003 अहमर्ग नाटक के लिए, प्लीज डोंट माइंड माय प्रोनाउंसिएशन, सर्वश्रेष्ठ कथानक पुरस्कार उनको मिला निष्ठा सांस्कृतिक मंच गुड़गांव हरियाणा से। डॉक्टर मीरा कांत जी के साथ आज बात करेंगी नमिता प्रकाश। Namita ji is currently Hindi facilitator at DLRC, the Learning Farm, Pune. She has more than 27 years of teaching experience and conducting classes for Hindi language and Hindi diction. She is an announcer for All India Radio. She is also associated with Pushkar Rangmanch. She is an avid reader of Hindi stories and poetry. Today's program has been totally curated by Namita ji. I would now invite Namita ji to take over the proceedings along with Dr. Meera Kant. Namita ji. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वर्जन। मीरा जी, आपका इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं दिल से स्वागत करती हूँ।
अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और ज्ञान अदब भी इस चीज को सेलिब्रेट करता है। और इसी परंपरा को जारी रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मीरा कांत जी से। तो मीरा जी, इस मंच पर आपका स्वागत है। शुक्रिया नमिता जी। सबसे पहले तो ज्ञान अदब परिवार के सभी सदस्यों को और कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान अदब अपने नाम और काम दोनों में ही देश की गंगा जमुनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतीक है। यहाँ जितने लगाव के साथ, जितने उत्साह और जितने अपनेपन के साथ हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के अदब को, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है, उसके लिए ज्ञान अदब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक बार दिल से फिर बधाई। तो आपकी इजाजत हो तो फिर प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज हम करेंगे मीरा जी से ढेर सारी बातें, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ लिखा है। हालांकि सबको एक में समेटना असंभव है, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना हम इनसे जानेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो मीरा जी, सबसे पहले मैं आपकी एक कहानी का अंश पढ़ना चाहूंगी, ताकि जो श्रोता यहाँ आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं या आपकी रचनाओं के बारे में जान रहे हैं, तो उनको एक बूंद का भी अंश मैं उन तक पेश करना चाहूंगी। ये अंश मैंने लिया है, आपकी लिखी एक कहानी है आत्मतर्पण। इसमें बहुत ही खूबसूरती से आपने चित्रित किया है कीलों के माध्यम से किसी व्यक्ति के अकेलेपन को, समाज में उसकी स्थिति को, वृद्धावस्था को, बहुत कुछ चीजों को बिंबित करता है। तो मैं ये अंश पढ़ती हूँ। प्राय हर घर के स्टोर में बरसों से पड़े सामान के बीच एक अदद पुरानी कीलों का डिब्बा होता है। इसमें हर आकार, हर प्रकार की कीलें होती हैं, छोटी, बड़ी, मोटी, भौंडी, यहाँ तक कि टेढ़ी भी। ज्यादातर कीलों पर समय का जंग भी लग चुका होता है, पर वे सभी भी उसी डिब्बे में रखी रहती हैं। उन जंग लगी कीलों के साथ ही एक और अखबार के कागज में लिपटी नई कीलों की एक पुड़िया रखी होती है। स्टोर की सफाई के वक्त भी प्रायः कीलों के उस डिब्बे को धूल झाड़कर वहीं संभाल कर रख दिया जाता है, उसी स्टोर के एक साफ कोने में, भीतर एक ठंडक के साथ कि वो महफूज है। 80 बरस की उम्र में जिंदा रहना भी एक अजाब है। ये तो घर के स्टोर से भी ज्यादा लंबी उम्र हुई शायद। साथ के ज्यादातर दोस्त खामोश शहर में जा बसे थे और वो खुद दूर एक वीरान फार्म हाउस में पड़े थे, जगह जगह से खरीदी और बटोरी गई किताबों के सहारे, लगातार किसी के इंतजार में। पर किसका? अपनी उन दो बेटियों का जो अपने अपने घर की हो गई, उस बेटे का जो उन्हें फार्म हाउस में बसाकर खुद ऑस्ट्रेलिया में बस गया, या उस बीवी का जो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करती करती इसी जन्म में अकेला कर गई, या फिर सोचा गिरिराज किशोर ने कि या फिर यादों से भरे उस बादल के एक टुकड़े का जो हमेशा आसमान में ही मंडराया और जिंदगी की इस तपती सड़क पर कभी कभी पल दो पल का साया कर गया। मीरा जी, वैसे तो आपकी कहानियां, आपके नाटक बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे दिल को छुए हैं और मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़कर गए हैं, लेकिन जो सवालों का सिलसिला शुरू करूं, कहां से करूं, उसमें एक चीज सबसे पहले उभर कर आई। आपकी 3 कहानियां हैं, कागजी बुर्ज, धामपुर और गली दुल्हन वाली। इन कहानियों को मैंने कहानियों के रूप में भी पढ़ा है और सोलो प्ले के रूप में भी पढ़ा है। जी। तो आपने अपनी ही रचनाओं को कहानियां और फिर सोलो प्ले, इसके पीछे कोई तो खास वजह होगी, वो हम जानना चाहेंगे। जी, ये तीनों कहानियां मैंने सोलो प्ले में तब्दील की। हालांकि ये तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं इस मायने में कि इनका तबका अलग है, इनका माहौल अलग है, इनका शहर अलग है, लेकिन एक डोर है जो इन तीनों को बांधती है और वो है औरत का दर्द। जी।
औरत का जीवन संघर्ष, जो इसकी पहली कहानी है गली दुल्हन गली वाली। दुल्हन वाली। जी, तो वो एक मुस्लिम परिवार की महिला है, दुल्हन, जो अपना शादी के बाद सब उसे दुल्हन कहते हैं, तो वो अब अपना नाम तक भूल गई है, जी। तो वो दुल्हन ही है सबके लिए। तो वो है, उसका पति जो है वो पेशे से कसाई है, लेकिन स्वभाव से भी वो कसाई है। और ये पूरी कहानी जो है ये घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के इर्द गिर्द बुनी गई। दूसरी कहानी धामपुर, ये समाज की उस मानसिकता पे प्रहार करती है जहां हम बच्चियों को बचपन से ही तैयार करते हैं कि तुम्हें ससुराल जाना है, दूसरे घर जाना है, और वही निभाना है, और फिर वहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। और शादी के बाद उन्हें बहुत समस्याएं होती हैं, वो कितनी खराब माहौल में जी रही होती हैं, कितनी हिंसा कई बार सह रही होती हैं, लेकिन उन्हें हर बार समझा बुझा के मायके से ससुराल भेज दिया जाता है। कहना चाहिए कि धामपुर की बस में चढ़ा दिया जाता है। यह धामपुर प्रतीक है। धाम यानी घर, और पुर यानी घर, मतलब 2 बार घर, घर घर। तो ये जो घर घर का खेल है, ये बच्चियां बचपन से खेलती हैं और जीवन भर यही खेलती हैं। सवाल ये है कि उनका अपना घर कहाँ है। मायका कहा जाता है आपका घर नहीं है, और ससुराल में क्या वो अपने फैसले ले सकती हैं? तो वो ये खेल तो खेल रही हैं, लेकिन वो कहाँ बिलोंग करती हैं, उनका घर कहाँ है। ये इस तरह की कहानी थी। तीसरी कहानी जो कागजी बुर्ज है, वो एक ऐसी युवती की कहानी है जिसके प्रेमी ने उसे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहा है। वो उसकी हेड की बेटी है, और हेड जो है वो उसे, जी, और उसको अच्छी नौकरी दिला रहा है। अब ये लड़की रिसर्च में है और अपने काम के सिलसिले में ये हैदराबाद का जो किला है गोलकुंडा, कुतुब शाही वंश का, वहां आई है, और वहां रोज आती है, लगातार आती है। वहां उसने एक कहानी सुनी कि एक यहाँ के एक बादशाह थे, तानाशाह। ये उनका प्यार का नाम था, उनका नाम कुछ और था, और वो तानाशाह नहीं थे, बहुत सूफी किस्म के आदमी थे। तो उनके जमाने में औरंगजेब ने किले पर हमला बोल दिया। औरंगजेब के पास बहुत सेना थी, बहुत शस्त्र थे। तो एक और, लेकिन तब जंग ऐसे होते थे कि सूरज के उगते ही जंग शुरू हो जाता था और सूरज के ढलते ही जंग बंद हो जाता था। अगले दिन सुबह किले मुलतवी कर दिया जाता था। जी, तो एक दिन शाम तक आते आते उन्होंने गोलकुंडा का एक बुर्ज तोड़ दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया, और उनको लगा कि हमारी फतेह हो गई है, अगले दिन सुबह आएंगे, हम सीधे किले में चले जाएंगे। और वो लौट गए। लेकिन इधर तानाशाह ने अपने सलाहकारों को बुलाया कि भाई क्या किया जाए, अगले दिन तो बिल्कुल मौत दरवाजे पे खड़ी है। तो उन लोगों ने कहा, देखिए, पत्थर का बुर्ज तो हम इतनी जल्दी बना नहीं सकते एक रात में, हम क्यों ना कागज का बुर्ज बना लें। तो उन्होंने बिल्कुल हूबहू एक बिल्कुल वैसा ही रातों रात कागज का बुर्ज तैयार किया। और सुबह जब सैनिक आए, उन्होंने दूर से ही देखा कि अरे, वो बुर्ज तो हूबहू वैसे ही खड़ा है, यानी इन्होंने रातों रात बना लिया, इनमें तो बहुत क्षमता है। वो घबरा गए और वो वहीं से लौट गए। तो ये कहानी सुनकर वो जो प्रोटैगनिस्ट है, वो जो नायिका है, वो सोचती है कागजी बुर्ज, यानी जो असलियत नहीं है, दूर से लगता है कि असलियत है, यानी एक इल्यूजन, एक भ्रम। क्या मेरा प्रेम भी कागजी बुर्ज था? क्या प्रेम कागजी बुर्ज ही होता है? तो इस तरह के बहुत से सवाल उसके जहन में आते हैं, और वो बहुत संवेदनशील युवती है और बहुत तनाव से गुजर रही है, तो वो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है। तो इन तीनों पे जो औरत का दर्द है, मैं चाहती थी कि ये और घनीभूत हो जाए और इंटेंस हो जाए। तो मुझे लगा कि नाटक तो बनाना, इसे एक साथ बहुत दर्शकों तक पहुंचाना है, लेकिन क्यों ना मैं इसे एकल नाटक, सोलो प्ले में तब्दील करूं। उससे मुझे लगा कि ये फायदा होगा कि केंद्र में वो महिला पूरे 1-1.5 घंटा जब तक नाटक चलेगा सिर्फ वही होगी, सारे किरदार वही निभाएगी, और जो उसका जो दर्द है, उसकी रोशनी में ही सारी घटनाएं दिखाई देंगी। और जो बाकी छोटे छोटे मुद्दे हैं, वो अगर वजूद पाएंगे तो उसी दर्द के रोशनी के साए में ही। तो मतलब केंद्र में ये दर्द रहना चाहिए, ये समस्या रहनी चाहिए।
और मैंने इस पे काम शुरू किया क्योंकि मैंने कभी एकल नाटक तब तक लिखे नहीं थे। अच्छा। और मुझे मालूम था कि एकल नाटक जो होते हैं वो अभिनेता के लिए एक चुनौती होते हैं, अपनी क्षमता दिखाने के लिए, क्योंकि वो इतने समय तक अकेला मंच पे रह के सारे कैरेक्टर निभाता है। लेकिन लिखते हुए मुझे लगा कि अभिनेता के लिए तो चुनौती ये बाद में होंगे, पहले तो नाटककार के लिए चुनौती है। क्योंकि मेरी कहानियां लिखी हुई थी, कहानी की शक्ल में थी, और उनको नाटक बनाना, मतलब उनको बिल्कुल। ड्रामा लाना, कॉन्फ्लिक्ट लाना, इस तरह की चीजें आना कि वो ड्रामा लगे, लोगों को इंटरेस्ट आए। तो बहुत सी एडिटिंग भी करनी पड़ी, कुछ घटनाएं छोड़नी पड़ी, कुछ घटनाएं जोड़नी पड़ी, कुछ कैरेक्टर हटाने पड़े, उसका अंत थोड़ा सा बदलना पड़ा। तो इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में मैंने बहुत सीखा और मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा है। बहुत बढ़िया। और मैं सभी से कहूंगी कि ये कहानियां आप जरूर पढ़िए। और एक चीज और जो मुझे नहीं पता थी मीरा जी आपके बारे में, कि हमेशा मुझे लगता था कि आपकी कहानियों और नाटकों के जो नाम हैं, जो शीर्षक हैं, वो अलग हैं। अब ये धामपुर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इसका अर्थ ये हो सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी। कागजी बुर्ज जो गोलकुंडा का किला है और जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अगला सवाल है जो बार बार आपकी रचनाओं को पढ़ते हुए मेरे जहन में उठ रहा था, कि मैंने आपकी कई रचनाएं पढ़ी, कई तो नहीं कहूंगी, कुछ पढ़ी हैं, कुछ नाटक पढ़े हैं, कुछ कहानियां पढ़ी हैं, और कुछ नाटकों की प्रस्तुतियां देखी हैं यूट्यूब पर मैंने। तो एक सवाल, जैसे मैं अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ, हुमा को उड़ जाने दो, नेपथ्य राग और उत्तर प्रश्न, इनमें एक बात, एक धागा समान जो मुझे नजर आया है वो है इतिहास और मिथक। हम कागजी बुर्ज की भी अगर बात करें तो इनसे आपका कुछ ज्यादा गहरा लगाव है, झुकाव है, या कोई और वजह है कि आपके कई नाटकों में कहीं ना कहीं इतिहास मिथक या इतिहास या मिथक या दोनों नजर आते हैं? तो इसके बारे में असल में ये जो मिथक और इतिहास की कहानियां हैं, ये मुझे बचपन से ही बहुत आकर्षित करती थी। मुझे ऐसी कहानियां आकर्षित करती थी जो अपने समय की सीमा लांघकर हमारे आज तक पहुंचे। मतलब ये जो युगों का फासला है, ये जो समय का फासला है, ये मिटाकर वो हमारे प्रेजेंट में हमारे हमशान हो, हमसे मुखातिब हो, हमारी समस्याओं का असल में आईना हो, एक तरह से उनका अक्स हो, तभी हम उससे रिलेट कर पाते हैं। तो क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जब हम मुड़कर देखते हैं, अपने अतीत में देखते हैं, तो हमें एक नजरिया मिलता है, बिल्कुल हमें एक दृष्टि मिलती है। और ये जो मिथक कथाएं होती हैं, असल में ये कभी-कभी मुझे लगता है ये टॉर्च की तरह होती हैं। अच्छा। जिनकी रोशनी में हम अपने प्रेजेंट को और अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और हमें भविष्य के लिए रास्ता मिलता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी में हम रिवर्स गियर लगाते हैं और उसके बाद हम आराम से आगे तक बहुत स्पष्ट हमें दिखाई देता है और हम जाते हैं। और एक बात और है कि इससे फलक भी बहुत बड़ा हो जाता है उस कहानी का या नाटक का, क्योंकि हम युगों से बता रहे हैं कि वो समस्या कब से चली है और उसने कब किस जगह स्वरूप बदला। थोड़ा बहुत तो बताना ही होता है, और अब किस हालत में है, अब क्या स्वरूप है उसका, तो इसका फलक बहुत बड़ा होता है। तो मैं अपनी बात सशक्त ढंग से कह पाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी उसको उस तरह से महसूस करते हैं फिर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इतिहास जैसा कहा जाता है कि हमको बहुत कुछ सिखा भी देता है। हम गलतियों से भी सीखते हैं, हम अच्छाइयों से भी सीखते हैं। और आपके नाटकों की जो विशेषता रही है, जो मैंने देखे हुए हैं, उसमें आप उसको बड़ी खूबसूरती से आज से जोड़ देती हैं। जैसे खना और वराह मिहिर की जो कथा है, उसको आपने इतनी खूबसूरती से कि उस समय भी औरतों की जुबान काटना एक जो वो आपने लिया है, जिसके कई अर्थ हैं। जी, ये प्रतीकात्मक है। जी प्रतीकात्मक है। जी तो इस तरह से जो जोड़ती है, तो जब आप ये ऐतिहासिक घटनाएं अपनी रचनाओं में शामिल करती हैं या मिथक जो है, तो ये वास्तविक होते हैं
या काल्पनिक होते हैं या वास्तविक काल्पनिक होते हैं, या काल्पनिक आप उनको कैसे बनाती हैं, कितनी प्रामाणिकता? या देखिए, ये कहानियां तो मिथक और इतिहास ही होती हैं, लेकिन और हम जो जब लिखते हैं तो देखिए हम कोई ऐतिहासिक उपन्यास तो लिख नहीं रहे होते हैं, है ना? तो फिक्शन ही लिख रहे होते हैं, कथा साहित्य है या नाटक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इतिहास की कीलों पे खड़ा एक कल्पना की इमारत होती है, लेकिन इतिहास इतना महत्वपूर्ण होता है, और लेकिन ये हमारे शोध और हमारी क्षमता पर भी निर्भर करता है जी। कि वो इतिहास उस रचना में कैरेक्टर बन के उभरे। जैसे मैं अपने उपन्यास हम आवाज दिल्लियां का जिक्र करती हूँ। हाँ। कहा जाता है कि दिल्ली एक नहीं कई थी, जब जब जिसने बसाई एक नया नाम दिया, उतनी ही दिल्लियां थी। तो जब सारी दिल्लियां एक साथ आवाज दें, हम आवाज हो जाएं, ये है हम आवाज दिल्लियां, वो मूवमेंट। तो इसमें मैंने बहुत शोध किया, क्योंकि ये कहानी 1825 से लेकर 1927 तक के 100 साल को समेटती है। और उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था, तो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों को जानना, समझना। फिर उस समय उर्दू का बहुत बोलबाला था, क्योंकि मैं दिल्ली का परिवेश ले रही थी, तो उस भाषा के बारे में जानना। फिर संस्कृति क्या थी, वेशभूषा क्या थी, त्योहार क्या थे, फिर जो जो समाज में जो इंसानी रिश्ते हैं वो क्या थे, और उससे भी बढ़कर समाज में जो अलग अलग समुदाय थे उनके आपसी रिश्ते क्या थे। ये सब शोध करके, इसके बारे में गहराई से सोच कर, उसे आत्मसात करके, कहना चाहिए एक तरह से अपनी रूह तक उतार कर, उसे जाने कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक उसमें जीकर, जब हम उसको कैनवस पर उतारते हैं, कहना चाहिए कागज पर लिखते हैं, तो तभी वो जो पाठक है वो उस कैरेक्टर की धड़कनें महसूस कर सकता है, जी। उस शहर को महसूस कर सकता है। वो एक तरह से उसके भीतर धड़कने लगता है, उसको लगता है कि मैं इसे जानता हूँ उस शहर को। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए। ये तो हुआ इतिहास की बात की, इतिहास किस तरह से कैरेक्टर बन जाता है। दूसरी चीज कल्पना। अब मुझे अपना नाटक हुमा गोर जाने दो याद आ रहा है। ये नाटक बादशाह हुमायूं की जीवन तो नहीं कहना चाहिए, हाँ, मृत्यु के इर्द गिर्द रचा गया नाटक है। बादशाह हुमायूं की मृत्यु अपने कुतुब खाने यानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसल कर हुई थी, और उनके ये तथ्य इंतकाल, है, जी, ये प्रामाणिक तथ्य है। ये प्रामाणिक है। ओके। और इस तथ्य को राजनीतिक वजहों से 17 दिनों तक छिपाया गया। अच्छा। यानी उनकी मैयत जो थी वो 17 दिनों तक वहीं रखी गई। बिल्कुल रखी गई थी, हाँ। तो इससे मैं इसको नाटक बनाना चाहती थी, बहुत नाटकीय घटनाएं थी ये सब। तो इससे ये तो उभर कर आ रहा था कि राजनीति के खेल में इंसान की जिंदगी और मौत कैसे सिर्फ दो मोहरे होते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि इसमें ये भी उभर कर आए कि इस खेल में इंसानियत का चेहरा कैसे झुलस जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं किसी ऐसी महिला या ऐसी स्त्री पात्र को चुनूं जो राजनीति में भी दखल रखती हो और बादशाह हुमायूं की बहुत बहुत करीब हो। मुझे लगा कि उनकी बेगम हमीदा बानो से बेहतर कोई कैरेक्टर मुझे मिल नहीं सकता। लेकिन मेरी समस्या ये थी कि इतिहास कहता है कि उस समय मुगल खानदान की कोई स्त्री दिल्ली में थी ही नहीं। हाँ, ये मैंने आपको सब काबुल में थी। हाँ। तो ये समस्या थी, लेकिन मैंने इस पे बहुत सोचा, लेकिन अंततः मैंने यही निर्णय लिया कि मैं हमीदा बानो को केंद्र में रखूंगी, उन्हीं के नजरिए से उन 17 दिनों के घटनाक्रम को देखूंगी, क्योंकि तभी वो शिद्दत से उस बात को महसूस करती हैं और सामने ला सकती हैं। तो इस तरह से कहना चाहिए कि ईंटें इतिहास की होती हैं, लेकिन जो गारा और सीमेंट है वो कल्पना का होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो हुमा को उड़ जाने दो जो नाटक है, इस पर मेरी नसीमा जी से भी बात हुई थी। उन्होंने इसको उर्दू में पढ़ा है और काफी कुछ वो, अब वो नसीमा जी पूछना चाहेंगी जो पूछेंगी। हाय नमिता, हाय मीरा जी, नमस्कार। मैंने पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने 2 बार पढ़ा आज। अच्छा शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लिखा आपने।
ये जो आपका नाटक है हुमा को प्रवास करने दो, मुझे इस नाटक में एक चीज ने बहुत मुतासिर किया कि नॉवलों की तरह मीरा जी ने महल का जो नक्शा है हुमायूं का उसने बहुत अच्छी तरह पेश किया है। जैसा लगता है कि हम वो दौर में चले गए, यानी कि अभी ऊपर जाएंगे, कुतुब खाना है, वहां से वो उतरे थे सीरिया और उनके साथ हादसा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक राइटर के लिए कि आप जब जी उनकी शुक्रिया नॉवल जब का जी। ये कुछ रंग संकेत है। जब मैं नाटक लिखती हूँ तो मैं तभी विजुलाइज कर पाती हूँ जब मैं सारे दृश्य अपने मन में स्पष्ट कर लेती हूँ। तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, मैंने जो पढ़ा और उसमें देखा। शाही महल का एक बड़ा सा कमरा जिसमें दाखिल होने का रास्ता स्टेज के दाएं तरफ है। बाएं तरफ जीना है यानी सीढ़ी है जो ऊपर एक कमरे के दरवाजे तक ले जाता है। ये कमरा हुमायूं का कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी। इसके ठीक नीचे यानी स्टेज की बाएं तरफ एक और कमरा है जिसका दरवाजा बड़े कमरे के दाएं तरफ के दरवाजे की सीमित रुख किए है और इस बड़े कमरे में ही खुलता है, यानी बड़े कमरे में छोटा कमरा। अभी आप सोचने लगेंगे कि कैसा वो महल होगा, जी वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा मुझे ये सवाल पूछना था मीरा जी आपसे कि इसके अलावा भी आपके कुछ ड्रामे उर्दू में हैं जो हम पढ़ सके? नहीं, अभी उर्दू में और कोई नहीं है। यही अभी एक यही है जी। मैं उम्मीद करूंगी कि उर्दू बाकी भाषाओं में है, संस्कृत में है, कन्नड़ में मराठी है, में है। तेलुगु में है, बहुत भाषाओं में है, अंग्रेजी में भी है। हाँ, लेकिन जिस तरह आपकी 3 कहानियों का नमिता ने जिक्र किया तो मुझे जी लगता है कि वो पढ़ना चाहिए। हाँ, वो उर्दू में हो गया है और वो बहुत जल्द छपने वाली है वो किताब। गुड गुड गुड। नहीं हुआ तो मैं नमिता से सीख के पढ़ लूंगी। अच्छा जी, मैं पढ़कर सुनाती जाऊंगी और नसीमा मैम उसको ओके प्रूव कर देते जी। हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक सवाल है मेरा कि शाही हजाम का जो किरदार आपके ड्रामे में है, ये हुमायूं का, तो उसमें ये शाही हजाम हकीकी है या अभी आपने थोड़ा बहुत तो जिक्र किया कि हकीकी और ख्याली, तो ये जी। क्या है उनका किरदार? ये हकीकी शाही है? हज्जाम के बारे में बताइए। अच्छा, अच्छा, शाही ये आपने हजाम। बहुत अच्छा सवाल किया नसीमा जी, क्योंकि ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं किया है। तो ऐसा है कि जब मैं शोध कर रही थी तो बहुत बार पुराना किला भी जाना हुआ और बहुत बार हुमायूं के मकबरे भी जाना हुआ। पुराना किला इसलिए क्योंकि वहां की सीढ़ियों से फिसलकर हुमायूं का इंतकाल हुआ था, राइट, हाँ। और मकबरा इसलिए क्योंकि वहां अंततः उन्हें दफनाया गया था। और वैसे ही मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि ये पढ़ते हुए मुझे पता चला कि हुमायूं जितने अच्छे ज्योतिषी थे, जितने अच्छे शायर थे, उतने ही अच्छे आर्किटेक्ट भी थे। अपने मकबरे का जो जगह है वो उन्होंने खुद इंतखाब की थी और उसका नक्शा उन्होंने खुद बनाया था कि वो कैसा होगा। तो जब मैं वो मकबरा देखने गई, बहुत बड़ा मकबरा है और वहां पे मुगल खानदान के लोगों की ही के ही मकबरे हैं, उन्हीं की कब्रें हैं, लगभग 100 के करीब होंगी। बहुत बड़ा है। करते करते मैं बहुत अंत में पहुंची तो वहां पे दूर एक अच्छी सी बहुत बड़ी सी एक मकबरा था। तो मैंने उसकी तख्ती पढ़ी, उस पर लिखा था हज्जाम का मकबरा। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि ये मुगल खानदान के लोगों के लिए ये है जगह, जगह है, हाँ। तो इसमें ये हज्जाम का क्या काम, और फिर ये हज्जाम है तो क्यों है, वो किसके बहुत करीब था और किसका हज्जाम था, कौन से बादशाह का हज्जाम था। तो मैंने बहुत किताबें छानी, बहुत देखा, लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं मिली, मुझे कुछ कोई सुराग मिला नहीं इसका। बस यही था कि वहां पे एक हज्जाम था, शाही हज्जाम करके। अच्छा, इधर मुझे अपने नाटक के लिए एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत थी, क्योंकि उसमें एक कमरा था जिसके अंदर, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहना था, और मुझे दिखाना था कि उसके अंदर उनका शव है, हुमायूं का। ये तो हकीकत थी कि उनका शव है, लेकिन एक भ्रम ये फैलाया जा रहा था कि अभी बादशाह खाना खा रहे हैं, अभी नमाज बादशाह पढ़ रहे हैं, हम्म। अभी बादशाह आराम फरमा रहे हैं। तो लोगों में, अवाम में ये फैलाया जाता था। तो इसके लिए एक ऐसा शख्स चाहिए था जो इस कमरे के अंदर बाहर करे, और जो अंदर बाहर है असल में इल्यूजन और रियलिटी है।
तो इस तरह से मुझे लगा कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो इतिहास के जो अंधेरे कोने होते हैं, जो छूट गए सिरे होते हैं, उनका कभी-कभी हम लोग क्रिएटिव फायदा उठा लेते हैं। तो इतना ही ये ऐतिहासिक है कि वहां पे एक मकबरा है और कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। बाकी उस कैरेक्टर को उसकी उससे जुड़ी घटनाओं को वो सब मैंने अपनी कल्पना से बनाया है। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, मुझे लगता है एक बार और पढ़ना पड़ेगा ये। अच्छा। इंटरेस्टिंग है, बहुत दर्दनाक भी है। आखिरी का जी, उसका जो है जी, वो बिल्कुल, दर्दनाक कि जी। 17 दिन आपने एक लाश को को एक रखा है। मैयत जी, को रखा है and उसको उसकी जगह पे नहीं पहुंचा रहे। दैट इज, जी, बिल्कुल। उसको परवाज नहीं दे रहे। आई थिंक सो हुँ। वेरी ये गुड। तो कभी अगली बार मैं बताऊँगी कि उनको 3 बार दफनाया गया और निकाला गया। वो और भी दर्दनाक है। हाँ, तो अभी बता दीजिए। अरे नहीं, वो फिर कभी। अच्छा, ठीक उस है। समय तो उन्हें जल्दी-जल्दी वहीं दफना दिया गया, अच्छा, पुराना किला में ही। फिर उनको जब किसी और बादशाह ने दिल्ली जीत ली, तो यहाँ से हाँ। सारे मुगल गए, तो उनको भी निकाल के ले गए अपने साथ। फिर वहां दफनाया, फिर वापस लाए और फिर जाके उनको ये नसीब हुई ये जगह। तो ये सभी कुछ बड़ा दर्दनाक है। लेकिन एक चीज है मीरा जी कि आपने बहुत शोध किया है, मतलब हाँ, वो तो आपकी करना ही पड़ता रचनाओं है। में। खुद जी, लाल किले में गए यानी। जी जी जी, ये आजकल के जो नए उभरते हुए लेखक है उनको ये सीखना चाहिए कि अरे इतने अरे इतना वो लोग शोध बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमें ये उनसे कुछ चीज़- सीखना चाहिए। नहीं नहीं, सीखना तो सभी से होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लिखते हैं, लेकिन जितना आपने खोज के उतना कि क्या उसका क्या इसके बारे में मैं और जाऊं, सही नहीं लग रहा है तो आपने और ज्यादा किया उसकी खोज जी, जी, और हमको भी इंफॉर्मेशन मिले। शुक्रिया। जी, थैंक तो हमें जब, हाँ, जब बात हुई है हुमायूं की, हुमा को उड़ जाने दो, मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, हुमा को उड़ जाने दो हिंदी में नाटक है, और हुमा को परवाज करने दो ये उर्दू भाषा में नाटक है। ये दोनों ही मौजूद हैं, उर्दू स्क्रिप्ट में मौजूद हैं ये। तो आपने एक तो हुमायूं की मृत्यु पर आपने ये नाटक लिखा है। एक और आपका बहुत ही प्रसिद्ध और मेरे प्रिय नाटकों में से एक है कंधे पर बैठा शाप। दो चीजें कहूंगी कि आपके जो शीर्षक है जो कहानियों के, वो बहुत अलग होते हैं। वो अपने आप में एक जिज्ञासा, उत्सुकता पैदा कर देते हैं कि अच्छा इसमें क्या होगा। तो कंधे पर बैठा शाप जो नाटक है, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि कालिदास के जीवन पर तो बहुत कुछ लिखा गया है, उनके जीवन पर बहुत सारे नाटक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मीरा जी ने कालिदास की मृत्यु पर यह नाटक लिखा है, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि किस तरह से कालिदास की मृत्यु हुई। और तो मीरा जी, इसके बारे में बताइए कि कंधे पर बैठा शाप में आपने कालिदास की मृत्यु को ही इसका केंद्र क्यों बनाया? असल में वो नेपथ्य राग का ज़माना था, मैं नेपथ्य राग लिख रही थी, तो उस सिलसिले में मुझे शोध बहुत करना पड़ता था। यूँ समझिए कि दिल्ली की हर लाइब्रेरी छानी गई। तो क्योंकि मुझे 4वीं-5वीं शताब्दी विक्रमादित्य का युग जो था, उस पे शोध करना था। फिर ये इसका माहौल उज्जैन का था, तो उज्जैन, वहाँ की संस्कृति, ये सब देखना था। तो उस दौरान अचानक एक दिन एक किताब में मुझे सिर्फ 2-3 लाइनों की एक कहानी मिली कालिदास की मृत्यु को लेकर। वो यही थी कि कालिदास एक बार सिंघल द्वीप गए थे। सिंघल द्वीप यानी आजकल का श्रीलंका। तो वहाँ के जो राजा थे कुमारदास, वो बहुत बड़े संस्कृत के कवि भी थे। उन्होंने जानकी हरणम भी लिखी है। वो इनसे बहुत प्रभावित थे कालिदास से, और हालांकि वो मिले नहीं थे कभी, लेकिन उन्होंने कई बार इनको आमंत्रित किया था और वो इन्हें अपना गुरु मित्र मानते थे। तो कालिदास उनसे मिलने वहां पहुंचे, और जब पहुंचे तो उन्होंने अपने साथ जिनको ले गए थे सेवक को, उसको बोला तुम राजा के पास जाओ और कुमारदास से कहो कि हम आ गए हैं, लेकिन हम 2-3 दिन नहीं आएंगे। हम आम आदमी के वेश में इस नगर को देखना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं। और उसको भेज दिया गया। अब रात का समय था, वो कहाँ रहते, उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। तो मध्य रात्रि थी, तो वो एक गणिका का घर था। गणिका जैसे कि रक्कासा मान लीजिए,
बहुत ही रिफाइंड तरीके की। और वो जो थी कामिनी, वो बहुत जो राजा और उससे जुड़े जो मंत्रीगण थे सिर्फ उन्हीं के मनोरंजन के लिए करती थी, और बहुत शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, सुसंस्कृत थी। उसके यहाँ जाके उन्होंने शरण ली। उन्होंने देखा कि ये बैठ के रात को क्या पढ़ रही है, उससे पूछा तो पता चला कि उसके हाथ में श्लोक की एक पंक्ति है जो कुमारदास ने लिखकर उसे दी है, और उससे कहा है कि अगर तुम इसे पूरा कर दोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। कामिनी कुमारदास से बहुत प्रेम करती थी और कुमारदास भी प्रेम करते थे। लेकिन अब ये शर्त एक थी, वो उससे निभ नहीं रहा था। कालिदास को लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं कुमारदास को कितनी अच्छी भेंट दूंगा, मैं इस श्लोक को पूरा कर देता हूँ, उनकी शादी हो जाएगी। उन्होंने वो श्लोक पूरा कर दिया। कामिनी तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जो वरिष्ठ गणिका थी, जब उसको पता चला, जिसने इसको पाला था कामिनी को, उसने उसे समझाया कि शादी तो तुम कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस पथिक का वध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने मुंह खोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और कामिनी ने कालिदास की हत्या कर दी। मरते हुए कालिदास ने ये बताया कि मैं कालिदास हूँ, तब तक इन्हें नहीं मालूम था, और कालिदास की ख्याति से ये सब परिचित थे। जब कामिनी को पता चला कि ये महाकवि कालिदास हैं, जो कुमारदास जिन्हें गुरु मानते हैं, तो उसे इतनी ग्लानि हुई कि उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। तो ये कहानी जब मैंने पढ़ी, ये छोटी से 3 लाइनों में थी ये कहानी, ये तो मैंने बहुत लंबी करके आपको जिस तरह से लिखी है वैसे बताई, तो आप सच मानिए मैं भीतर से ठहर सी गई कि ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी घटना और हमने आज तक सुनी नहीं कालिदास के बारे में। फिर मैंने बहुत से लोगों से बात की, किसी को नहीं मालूम था। फिर मैंने संस्कृत वालों से बात की, उन लोगों ने श्लोक तो जरूर सबको पता था, बहुत लोगों को श्लोक आता था, ये भी पता था कि एक पंक्ति कालिदास ने लिखी है, लेकिन ये घटना नहीं किसी ने मुझे बताया कि हाँ उन्होंने सुनी है। तो जरूर किसी को तो मालूम ही होगा वैसे, लेकिन मुझे लगा कि ये क्योंकि चर्चित नहीं है, कालिदास के जन्म पे, उनके जीवन पर इतने नाटक हैं, तो मृत्यु पे क्यों नहीं। तो मैंने उनके मृत्यु पे नाटक लिखा, क्योंकि मुझे मन में एक ये बहुत बड़ा दुख था कि, और मैं बहुत सोच रही थी इसे गहराई से कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इतनी बड़ी बात हमें नहीं मालूम है। बिल्कुल। तब मैंने सोचा ये ऐसा हुआ होगा कि जब ये समाचार आर्यावर्त में आया होगा, तब भारत को आर्यावर्त कहते थे, तो सन्न रह गए होंगे सब कि हमारे कवि गुरु की मृत्यु, और वो भी सिंघल द्वीप में जाकर। बड़ा शर्मनाक था ये, और शर्मनाक तो उनको इसलिए भी लगा कि जब उनकी चिता जल रही थी तो कुमारदास जो राजा थे वहां के, उन्हें भी इतनी ग्लानि हुई कि मेरे मित्र, मेरे गुरु मेरे देश में आके मर गए, वो भी एक चिता में आत्मदाह कर लिया उन्होंने। तो ये जो माहौल था, 2 कवियों की मृत्यु, इसके बाद सबने मतलब तय ये किया होगा कि इसमें ज्यादा बात नहीं की जाएगी, और धीरे धीरे जो हमारी जातीय स्मृति होती है, जो समाज की जो कलेक्टिव मेमोरी होती है, उससे ये धीरे धीरे बात पुछ गई, धुल गई, और अब किसी को मालूम ही नहीं। तो मुझे लगा कि अगर कुछ गिने चुने लोगों को मालूम है और ये लिखी गई है किताब में, तो इसे जरूर इस पे नाटक बना के लोगों तक पहुंचाना चाहिए। वेरी गुड। बिल्कुल, मतलब ये तो खैर बहुत अहम जानकारी है। कहने को मैं 27 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन हिंदी पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये जानकारी मीरा जी मुझे भी नहीं थी, और सच मुझे लोगों को पता होना चाहिए। आपकी इस शोध का इतना हमको फायदा है कि आपको मैं क्या बताऊं। एक और नाटक की तरफ मैं आती हूँ। आपका काफी चर्चित, प्रशंसित, सम्मानित नाटक है भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हिंदी साहित्य के बेहद उपेक्षित, बल्कि कहें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण लेखक रहे, जिन्होंने एक अलग मोड़ दिया रचनाओं के द्वारा, लेकिन उनके साथ हमारे समाज ने बहुत अन्याय किया। साहित्यिक समाज कहिए या जो भी कहिए, लेकिन उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। तो और इस नाटक को जब मैंने पढ़ा, तो मुझे एक चीज, जो मैंने उस तरह के नाटक कभी नहीं पढ़े थे, कि आपने भुवनेश्वर जी की लिखी हुई कृतियों से ही कुछ अंश उठाए हैं जस के तस, और उनको आपने इतना सुंदर पिरोया है, अपनी भाषा शैली से बोलिए, अपनी कल्पनाओं से बोलिए, कि वो बिल्कुल घुल मिल गए हैं।
तो ये भुवनेश्वर, दो सवाल है इसमें मेरे। एक तो भुवनेश्वर क्यों, और दूसरा इस तरह की शैली का नाटक लिखने में आपका क्या अनुभव रहा? भुवनेश्वर क्यों का तो आपने खुद ही जवाब दिया कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। तो मैं भी यही कहूंगी कि ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण वो स्थितियां ही हैं जिन्होंने कि मुझे नाटक की तरफ ठेला। भुवनेश्वर जीनियस थे, वो अपने समय से बहुत आगे थे। बहुत आगे थे। और 1930 के दशक के आसपास जब साहित्यकार हमें आदर्शवादी नैतिकतावादी साहित्य दे रहे थे, उस समय भुवनेश्वर कथ्य के शिल्प के जो पूर्व निर्धारित सांचे थे, स्ट्रक्चर्स थे, वो तोड़ रहे थे और प्रयोग कर रहे थे। आधुनिक संवेदना के नाटक दे रहे थे, कहानियां दे रहे थे, जो बाद में आजादी के बाद हमारे साहित्य में मिलते हैं, वो 1930 में दे रहे थे। आज हम पलट के देखेंगे तो हमें यकीन नहीं होगा कि 70 साल पहले लिखी गई रचनाएं हैं। और हिंदी का जो पहला एब्सर्ड नाटक है, वो भुवनेश्वर जी ने हमें दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि एक षड्यंत्र के तहत उनके लिखे को नकारा गया, उन्हें दरकिनार किया गया, उनके लिखे को छापा नहीं गया। बिल्कुल, रेडियो ने उनकी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की। तो उस तरह से वो अकेले होते चले गए, और कुछ पारिवारिक स्थितियां भी ऐसी थी, तो अंततः मानसिक रूप से वो थोड़ा गड़बड़ा गए, थोड़े असंतुलित हो गए। और फिर कुछ फटे कपड़ों में कुछ चिंदियों पे कुछ लिखते हुए आवारावर सड़कों पे घूमते रहे। तो ये सब चीजें जब मैंने पढ़ी, उनका साहित्य पढ़ा, और मुझे लगा कि वो जब उन आवारा सड़कों पे घूमते थे, उन चिथड़ों में ही और उन फटे कागजों पे, उन्होंने हिंदी साहित्य को कितनी बड़ी मणियां दी है, ये हम सोच भी नहीं सकते अगर हम उसे पढ़ के देखेंगे, कितने आगे की बातें उन्होंने की हैं। तो ये देख, लेकिन फिर मैंने उसी के उसमें कहना चाहिए कि उसके साथ साथ मैंने समाज पर भी निगाह डाली। तो मुझे लगा भुवनेश्वर क्या एक है? तब मुझे लगा आज क्या भुवनेश्वर नहीं है समाज में? क्या साहित्य में और भुवनेश्वर नहीं है? क्या कलाओं में भुवनेश्वर नहीं है? क्या विज्ञान में भुवनेश्वर नहीं है? जब भी हम किसी जीनियस को मीडियोकर लोग दबा देते हैं, क्या वो भुवनेश्वर हो जाना नहीं हुआ? तो मुझे लगा कि मैं ये जो नाटक लिखूंगी, भुवनेश्वर जी के जीवन के से घटनाएं लूंगी जरूर, लेकिन ये सिर्फ भुवनेश्वर का ये जीवन चरित्र नहीं होगा, ये समाज के उन असंख्य अदृश्य भुवनेश्वरों के नाम होगा, उनके लिए भी होगा जो हमारे समाज में जगह जगह मौजूद हैं और हमें मालूम नहीं है। तो एक तरह से पूरी भुवनेश्वर परंपरा को मैंने लिया। और इसमें जो दूसरी बात आपने कही कि उनकी रचनाओं को पिरोया, हाँ, मुझे लगा कि एक तो मंच के कुछ ऐसे दृश्य थे कि उनके नाटकों को भी लेना था, दिखाना था कि वो कैसे, एक तो मुझे लगता था कि मैं दर्शकों तक वो युग, वो एरा लाऊं कि उस जमाने में कैसा भुवनेश्वर जी लिख रहे थे, उनकी थोड़ी सी बानगी हो जाएगी। इसके अलावा मुझे लगा कि एक प्रामाणिकता लाने के लिए कि भुवनेश्वर का व्यक्तित्व क्या था, वो लिजलिजापन नहीं था उनमें, वो भावुक उस तरह के भी नहीं थे, तो वो कितना ज्यादा, इतना ज्यादा वो यथार्थ था कि वो इंसान घबरा जाता था, इंसान को आईना दिखा देते थे, जैसे कि इंसान बहुत करीब से अपना चेहरा देख ले, ऐसे ऐसे घबरा जाता था। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व को उभारने के लिए मैंने उनका सहारा लिया, कहना चाहिए, उनके साहित्य का, और उससे थोड़ी प्रामाणिकता तो आई, पर हाँ, उसको मैंने पिरोया। और लेकिन ये सबको मालूम है कि ये कहाँ से उनकी, और उसमें भी जिक्र है कि ये भुवनेश्वर की लाइनें हैं, भुवनेश्वर की पंक्तियां हैं। तो इस तरह से ये नाटक बुना, लेकिन ये खुद ब खुद हुआ, मैंने कोई सायास, कोई ऐसा तय नहीं किया कि मैं ये शैली अपनाऊंगी या ऐसा करूंगी, बस अंदर से ऐसा लगा कि मैं ये पंक्तियां लूं, यहाँ पे ये पंक्तियां लूं, इस तरह से ये होता चला गया। तो इस नाटक में एक बिना कपड़े की छतरी का जिक्र भी है जी। तो वो अभी आपसे बात करते करते मेरे जहन में है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर मैं अगले सवाल पे जाती हूँ।
असल में वो बिना कपड़े की जो छतरी है, सिर्फ तीलियों वाली छतरी, सिर्फ तीलियों वाली छतरी। हाँ, वो मेरे जहन में, वो भुवनेश्वर जी हाथ में लेकर चलते थे। अच्छा। जब मैंने विजुलाइज किया उनको और फिर मैंने सोच के देखा कि ये छतरी क्यों रखते होंगे, कभी खोलते भी होंगे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये छतरी नहीं, खुद भुवनेश्वर का व्यक्तित्व है। हाँ, ये वो भरोसे की छतरी है जो भरोसा उन्हें किसी रिश्ते में कभी नहीं मिला। मिला। जीवन में न किसी दोस्त से मिला, न किसी प्रेमी से मिला, कहीं से नहीं मिला, जिंदगी से ही नहीं मिला कहना चाहिए, जी जी जी। है ना। तो वो जिस तरह से निपट अकेले थे, होते हुए भी नहीं के बराबर थे, लेकिन फिर भी बहुत थे। तो वो टोटलिटी में वो मुझे भुवनेश्वर का प्रतीक लगता था। तो मैंने, इसलिए मुझे लगा कि ये नाटक में जरूर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जी, सच में वो, मुझे ये चीज नहीं पता थी कि भुवनेश्वर जी अपने साथ हमेशा वो छतरी रखते थे, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप में वो हर समय उस पूरे नाटक को पढ़ते समय जब जब उसका आया तो वही जिक्र आता था, एक खालीपन, जी। एक जो सहारा होना चाहिए, जो जो आश्रय, जो शेल्टर होना चाहिए, उसके बिना का व्यक्ति। मतलब हमें एक भरोसा रहता है कि हाथ में छाता है, कभी भी खोल लेंगे, लेकिन वो छाता किसी काम का तो है किसी नहीं। काम का नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जिंदगी उनके लिए यही थी। और जिंदगी उनके लिए यही थी, बिल्कुल सही बात है। बल्कि मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी रचनाएं भी बहुत सारी चुरा ली गई, उनकी अंग्रेजी की रचनाओं को दूसरे कवियों ने, लेखकों ने अपने नाम से छापा, बहुत कुछ, मतलब हाँ, बहुत कुछ हुआ। अ, और फिर अंततः उनका बहुत दुखद अंत हुआ, ये भी नहीं मालूम कि शहर में कहाँ कैसे, किन कोई हालात कहता है यहाँ, कोई कहता है यहाँ। तो बिल्कुल, जैसे मैं दुर्भाग्य के लिए जब मैं प्रेमचंद जी को पढ़ती हूँ और उनका जो निर्मला उपन्यास है, तो जब मैं पहले पढ़ती थी तो मुझे हमेशा मेरे जहन में एक सवाल आता था कि इतना दुर्भाग्यशाली कोई कैसे हो सकता है, जो निर्मला का चरित्र उन्होंने खींचा है प्रेमचंद के उसमें। लेकिन भुवनेश्वर जी की जीवनी पढ़ने के बाद लगता है कि ऐसे दुर्भाग्यशाली कई लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जिनके जीवन में सौभाग्य का कोई क्षण नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो मैं अब चलती हूँ अगले सवाल की तरफ। आपने किसी एक ने सवाल भी किया है, वो हम सवाल बाद में लेंगे। ऑडियंस को मैं बता दूं, कुछ सवाल आने लगे हैं चैट में, लेकिन वो हम बाद में लेंगे। आपने कई सभ्यताओं संस्कृतियों का भी अपने कहानियों में जिक्र किया है, दिल्ली का किया है, हैदराबाद के गोलकुंडा का किया है, बहुत बहुत मतलब अहमियत के साथ में वो जगह, वो संस्कृति, वो इतिहास प्रबलता से मौजूद रहा है। आपकी कहानी है पेंडेमिक, जो पूना के सिंहगढ़ किले को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। तो पूना से आपका संबंध रहा है, ये तो मुझे पता है, लेकिन वो किला, किले से जुड़ी कहानियां, वो थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में। बहुत पुरानी कहानी की याद ताजा करा दी आपने। हाँ, पूना कई बार आना हुआ था, सिंगर भी गई। असल में जो शहर होते हैं, प्राय उनमें स्मारक भी होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी का एक रोजमर्रा का हिस्सा होते हैं। हम उन्हें रोज देखते हैं, वहां से गुजरते हैं, कभी कभी उनके बागीचों में बैठ भी जाते हैं, लेकिन उन पे कभी गहराई से नहीं सोचते। और ये तभी मुमकिन होता है जब हम वो शहर छोड़ दें, किसी दूसरे शहर में चले जाएं या विदेश चले जाएं, फिर बहुत अरसे बाद लौट के आए। तो इसका जो नायक है, वो भी पूना में अपने नौकरी में बहुत कुंठित है, तो उसे जैसे ही अमेरिका में नौकरी मिलती है, वो अमेरिका चला जाता है। अब वो बहुत बहुत अरसे बाद लौटा है, उसके साथ उसकी बेटी भी है, और वो अपनी बेटी को पहली बार पूना दिखा रहा है, जो उसका जन्म स्थल भी है। जब वो सिंहगढ़ की सीढ़ियां चढ़ता है, वहां के पत्थरों को छूता है, तो उसे पहली बार महसूस होता है, क्योंकि अब वो इतिहास भी पढ़ के आया है, तो उसे पहली बार महसूस होता है कि शिवाजी ने, तानाजी ने इस किले के लिए कितना संघर्ष किया है जी। और कितने सैनिकों ने बलिदान दिया है इस किले के लिए। ये हमने कभी सोचा ही नहीं था, वो ये सोचता है। फिर वो ऊपर चढ़ता है, तो ऊपर एक पहाड़ इसी को देख के सोचता है, यही किसी, जो टीले छोटे छोटे हैं, हाँ। यही किसी टीले पे खड़े होकर कभी तिलक ने भी इसी हवा में सांस ली होगी, यही यही सांस उनके भी फेफड़ों में गई होगी जहां मैं आज खड़ा हूँ, तिलक खड़े होंगे।
फिर वो नीचे की तरफ देखता है तो पूना दिखाई देता है, तो कहता है ये पुणे क्यों, पूना क्यों, इसका नाम कैसे बना, पहले कुछ और था और फिर ये नाम भी बदले जा रहे हैं समय के साथ साथ, तो बहुत कुछ बदल रहा है समय के साथ साथ। फिर उसे याद आता है कि अरे महर्षि कर्वे भी पूना की किसी गली में ही रहे होंगे कभी, मैंने कभी जहमत उठाई नहीं कि मैं जाके जरा देखूं वो गली कौन सी है। तो तो उसको बहुत सी चीजें एक साथ याद आती हैं। और फिर जब वो अपने किले से मेरे ख्याल से वो घाटी में झांकता है नीचे की हाँ, तरफ। जहाँ उसकी हाँ, शक्ल उसको तो बचपन। उसे उसे लगता है जैसे उसने अपने दिल में झांका है हम्म, और उसे वहां अपना अतीत दिखाई देता है। कौन सी स्थितियां थी जिनसे वो असंतुष्ट था, और वो पेंडेमिक जैसी स्थितियां थी। पेंडेमिक से बीमारी का ही नहीं होता, बहुत सी मूल्य व्यवस्था का भी होता है, बहुत सी चीजों का हो सकता है। तो वो किन की वजह से यहाँ से गया था, पलायन कर गया था वो, और उसने कभी कोशिश नहीं की कि इनको ठीक करता। तो ये सब वो सोचता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, असल में हर शहर का अपना एक इतिहास होता है, हर परिवार का भी इतिहास होता है और व्यक्ति का भी इतिहास होता है। तो जब शहर का इतिहास और व्यक्ति का इतिहास एक दूसरे में घुलने मिलने लगे तो पेंडेमिक जैसी कहानियां बनती हैं। तो इसमें इस कहानी में एक जगह उल्लेख हुआ है कि वो उस किले पर पहुंचकर इतिहास में झांक रहा है और उसका जो परिवार है वो उसको वो स्थितियां बड़ी रोमांटिक लग रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज की जनरेशन जब जाती है हाँ, तो उसे बहुत सी जगह बड़ी रोमांटिक लगती हैं कि अरे ये मॉन्यूमेंट है, हाउ रोमांटिक, है ना, ये एक्सप्रेशन होते हैं। जी जी। लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, जो बलिदान है, उसके बारे में हम ठहरकर क्यों नहीं सोचते हैं। ये उसके मन में आता है कि वो कैसे समझाए इस जनरेशन को कि पीछे भी थोड़ा झांक कर देखो कि कैसे हमने ये सब हासिल किया है, जिसको आज वो एंजॉय कर रहे हैं या हम एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और सवाल है मेरा कि ये तो आपका हमने जो उपलब्ध था उसको मैंने खंगाला, छाना, आपसे कुछ सवाल तैयार किए। अभी क्या चीजें हैं जो हमको आने वाले समय में मिलने वाली है? आप अभी किस पर लिख रही हैं, किस पर लिख चुकी हैं, छपने के लिए गया हुआ, मतलब जो हम तक पहुंचा नहीं है उसके बारे में बताइए। कौन सा परिवेश, किस अभी माहौल? सबसे पहले तो देखिए आपको मेरा कहानी संग्रह मिलेगा। अच्छा। मुझे लगता है इसी महीने के अंत तक या अक्टूबर के शुरू में बिल्कुल। ताले में शहर, ओ। और इसी नाम से मैंने एक कहानी लिखी थी कोरोना में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। उस जमाने में सभी समाज के बारे में, जिंदगी के बारे में अलग नजरिए से सोचने लगे थे। तो मैंने भी इसी तरह से सोचा और मैंने, जैसे मेरी आदत है, थोड़ा इतिहास में गई, थोड़ा शोध किया। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना ये कहानी लिखूं कि आज से ठीक 100 साल पहले 1918-19 में भी दुनिया में ऐसा ही एक पेंडेमिक आया था, स्पेनिश फ्लू करके, और उसने भी दुनिया में ऐसी ही तबाही मचाई थी। और वो भारत में तब आया क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो हमारे सैनिक वहां से लौट के आए, उनके साथ ये बीमारी भारत में आई। वो बंबई में उतरे और तब तक यहाँ ट्रेन आ चुकी थी, रेल थी भारत में, तो वो रेल के माध्यम से वो अपने अपने शहरों में पहुंचे और ये बीमारी आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। बिल्कुल ऐसी हालत थी कि लाशों के ढेर थे, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, शमशानों में जगह नहीं थी, कफन नहीं मिल रहा था, कफन का कपड़ा नहीं मिल रहा था, और कुछ लोग जो शव थे उनसे कफन चुराकर बाजार में कफन भी बेच रहे थे। इस तरह की बड़ी दर्दनाक स्थितियां थी जो मैंने जानी पड़ी। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक कहानी लिखनी चाहिए कि कितना साम्य है इसी तरह। और देखिए उस समय ये सब हो रहा है और डिस्पेंसरियां खाली हैं, मिशनरी अस्पताल खाली हैं, क्योंकि जितने अंग्रेज डॉक्टर हैं वो सब वर्ल्ड वॉर में गए थे। और जब ये वो स्पेनिश फ्लू जो फैल गया तो वो यहाँ न लौट के अपने अपने घर चले गए कि हम यहाँ क्यों जाएं, इतनी बीमारी फैल रही है। तो यहाँ डिस्पेंसरियां, मिशनरी अस्पताल सब खाली थे और सिर्फ जो हमारे स्वराजी थे वो लोगों की मदद कर रहे थे। मंदिर बंद थे,
मस्जिद गिरजे सब बंद थे, संस्थान बंद थे। और ऐसे में जो चीफ कमिश्नर थे दिल्ली में मिस्टर विलियम हेली, वो इतने डिप्रेशन में आ गए थे कि उन्होंने 3 महीने की छुट्टी ली और जापान तफरी करने चले गए घूमने। तो यानी सारा प्रशासन ठप है और स्वास्थ्य व्यवस्था बंद है। इतनी महामारी फैली हुई है, तो बुरी बुरी हालत थी। मगर इंसान की एक खूबी है कि उसमें उम्मीद की एक लौ होती है, उसके सहारे वो हर जीवन संघर्ष में बार बार खड़ा होता है। तो इस बार भी उसने इसी का सहारा लिया, वो फिर एक बार खड़ा हुआ, फिर एक बार एकजुट हुआ। और सब लोग जब एकजुट हुए तो बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से एकजुट हुए, पूरे देश के लेवल पे एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम थी उसमें जुट गए। तो यानी शहर पे, पूरे शहर पे ताला था, लेकिन इंसानियत पे ताला नहीं था। तो ये उस कहानी संग्रह की एक कहानी होगी। उसके अलावा भी नई 5 कहानियां हमको हैं। मिलेंगी जी। तो मीरा जी, वैसे तो बहुत कुछ है आपकी रचनाओं का जो अनछुआ रह गया है। आपसे बात करें तो शायद घंटों हम एक ही किताब पर बात कर सकते हैं, बाकी तो आप जी। बाकी रचनाओं को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ समय की सीमा है। लेकिन मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि आप लोगों के जो सवाल है वो आप तैयार रखिए। एक सवाल आ गया है, मैंने देखा है, वो काली बर्फ पर पूछा गया है। एक सेकेंड। ये संगीता रामनाथ देशमुख ने बोला है। हाँ, मीरा कांत जी का नाटक काली बर्फ नाटक के बारे में सुनना चाहते हैं, बताइए। काली बर्फ कश्मीर के विस्थापन पे लिखा गया नाटक है। ये भी बहुत पुराना नाटक है। काली बर्फ कश्मीरी का एक मुहावरा है और इसका मतलब है असंभव, जो कभी नहीं होता, क्योंकि बर्फ तो काली कभी नहीं होती। तो ये इस तरह से मुहावरा है, इसको मैंने इसमें इस्तेमाल किया। ये बहुत ही वो दर्दनाक स्थितियां थी कि आतंकवाद ने उस घाटी में कितना तूफान मचाया था। घाटी जल रही थी, डल सूख रही, डल पे खून के धब्बे हैं कहना चाहिए। और स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, रोजगार नहीं है, गुर्बत फैल रही है। और दूसरी तरफ जो आतंकवाद है, उन्होंने जो कोहराम मचा रखा है, तो उससे एक समुदाय जो था उसको वहां से निकलना पड़ा। वो वहां से अपनी जमीन से उखड़ गया और उसमें बहुत से लोग पूरे देश में बिखर गए, क्योंकि लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जम्मू में ही रहे और कहीं आसपास रहे, जो शिविरों में रहे। तो ये बहुत मुझे दुखद स्थिति लगी कि आप अपने ही देश में विस्थापित हैं, शरणार्थी हैं, और आप शिविर में रह रहे हैं और आपका पता केयर ऑफ शरणार्थी शिविर है अपने ही देश में। और दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो घाटी में छूट गए थे वो भी खुश नहीं थे, आतंकवाद उन्हें भी नहीं बख्श रहा था। उनकी बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही थी, उनके नौजवान बेटे लापता हो रहे थे, वो उनकी तलाश में दीवानावर घूमते थे कि कहाँ से खोजें, क्या करें। तो एक वो भी एक आतंक के साए में जी रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों तरफ ये जो दुख था, इसने मुझे बहुत घेरा था और मुझे लगा कि मुझे इस पर एक नाटक लिखना चाहिए। लेकिन इस पे मैंने एक उम्मीद उपन्यास। रखी थी, हाँ उम्मीद रखी थी कि स्थितियां ठीक होंगी। हाँ, काफी सकारात्मक है ये, मतलब इसमें उम्मीद की किरण हर जगह नजर आती है, इतने बुरे हालातों के बावजूद। आपका एक उपन्यास भी है जो इसी पृष्ठभूमि पर है, एक कोई था कहीं नहीं सा। जी। और आप भी कश्मीरी हैं, कश्मीर से आपका भी जुड़ाव रहा है, तो ये चीजें यकीनन आपको बहुत ज्यादा झकझोरती होंगी, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन सब चीजों को देखा है। असल में तो एक मैं कोई था कहीं नहीं सा जो है, ये वहां के बच्चों का एक खेल गीत है, उससे लिया गया है। और ये अच्छा। मुझे लगता है ये जो लाइन है ये उलटवासी की तरह है, ये कोई था मगर कहीं नहीं सा, तो हाँ हाँ उलटवासी जैसा हो गया। हाँ। तो मैंने ये मुझे ऐसा इसको देख के मैंने कश्मीर पे जब इसको कश्मीर के साथ जोड़ा, वहां की स्थितियों के साथ जोड़ा, तो मुझे लगा कि समग्रता में चाहे लोग वहां से निकल गए, यहाँ वो हैं जितने कश्मीरी हैं, उन सबका जीवन एक उलटवासी ही हो गया है। जो निकल गए हैं वो स्मृतियों के सहारे जिंदा समझिए। हैं। तो ये जो उलटवासी है, दोनों तरफ का जीवन यही है। तो पूरा कश्मीर
कश्मीरियत खत्म हो रही है, पूरा कश्मीर एक पलटवासी की तरह हो गया है। इसलिए मैंने ये उपन्यास लिखा, और वो 100 साल का सफर है, वो भी बहुत लंबा। तो जी, तो हम श्रोताओं से अगला सवाल लेते हैं। नितेश, नितेश, मैं वैसे तो आपने काली बर्फ का जिक्र कर दिया है, पर मैं जाती तौर पर आपको मुबारकबाद देता हूँ, साधुवाद प्रकट करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ क्रोहनशीन के लिए। मतलब सिर्फ उसकी विषय वस्तु या कथानक के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी कि निष्कासन और विस्थापन ऐसे मार्मिक विषय को सनसनीखेज किए बगैर प्रस्तुत करके दिखाया आपने। मतलब मुझे लगता है कि इस विषय पर नाटक अमूमन नहीं करते होंगे लोग या डरते होंगे, पर शायद इस नाटक को कोई भी जो इससे मुतासिर है वो आराम से कर सकता है बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हुए। तो आपने ये कमाल किया है, उसके लिए थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। आप वैसे बोल चुके हैं उसके बारे में ऑलरेडी, पर कुछ और कहना चाहे तो कि क्योंकि आपने किसी पर भी सीधा आक्षेप नहीं, कुछ नहीं आपने, बल्कि उसके लिए एक, मैं क्या कहूँ कि शांति सहिष्णुतापूर्ण एक निवारण की दिशा भी दी है कि शांति और सहनशीलता, आराम से वक्त आएगा, एक उम्मीद है, हमारा गुल्ला मारा जाएगा, है ना, हमारा गुल्ला भी मरेगा। ये मुझे याद है अंदर तक, मैं उससे हमारा गुल्ला मरेगा जी। मैं बहुत उससे टच हुआ था। चल, इससे जुड़ा हुआ मैं कहता हूँ कि ये जो रचना की जो ये प्रकृति है कि छपना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि राइटर जब सृजन करता है अपने अंदर आपके एक फीलिंग है, उसको पहले आप उतार देती हैं, कहानी में समझ आता है। नाटक में एक अलग डिसिप्लिन में उतारना, आपको कभी ये लगा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ क्या वैसा ही पहुंचेगा? क्या इस तरह के डर किसी भी और आपकी रचना के बारे में आपके मन में कभी इस तरह के डाउट आए कि तादाद में हो पाएगा या नहीं? अच्छा, टेक्निकल सवाल है। नहीं, काली बर्फ के उसमें तो मुझे ऐसा डर नहीं लगा, लेकिन हाँ, अंत हासिल हो के लिए मुझे ऐसा डर लगा था। मैं बताना चाहूंगी कि वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का नाटक है। ऐसी स्थितियां जहां बच्चियां और जो किशोरियां हैं वो अपने ही परिवार में, अपने ही घरों में सुरक्षित न रहें, और वो घर उनके लिए खतरा हो जाता है। वो कौटुंबिक व्यभिचार, कहना चाहिए इंसेस्ट की कहानी के इर्द गिर्द बुना गया है, और ऐसी घटनाएं घरों में प्रायः होती हैं और उन्हें दबा दिया जाता है। तो मैं चाहती थी कि ये जो मुद्दा है, इसमें जो पारिवारिक संबंधों में की जो सीलन है, जो दलदल है, इसके घाव, इसके जख्म लोगों तक पहुंचे और सही परिप्रेक्ष्य में पहुंचे। तो मेरे लिए ये मुद्दा बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ऐसी स्थितियां रहेगी तो समाज कहाँ पहुंचेगा। ये छोटी छोटी घटनाएं, असल में एक एक घटना मानवता की हत्या के बराबर है। कहाँ जाएंगी हमारी बच्चियां अपनी मासूमियत लेके अगर इस तरह का होने लगा। तो मेरे दिल के बहुत करीब था ये विषय, और लेकिन मुझे बहुत बड़ा खतरा था कि जब इसका मुख्य दृश्य खेला जाएगा, क्या वो सही परिप्रेक्ष्य में, कहना चाहिए वो जो परिवार का पुरुष है उसकी कामुक दृष्टि को, और वो जो बच्ची है उसकी बेचारगी भरे विरोध को उस तरह से जाहिर कर पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और ही रस दर्शकों तक पहुंच रहा हो। क्योंकि देखिए, जब एक नाटक है हम लिख देते हैं, उसके बाद वो कई टोलियां खेलती हैं, कई निदेशक खेलते हैं और कई कलाकार उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रायः हम न निदेशकों को जानते हैं, न कलाकारों को जानते हैं, और जानना मतलब हम उनकी सोच को, उनकी समझ को नहीं जानते हैं कि वो उस इशू को किस तरह से महसूस करते हैं और कैसे डिपिक्ट करेंगे, बिल्कुल उसका बिल्कुल क्या चित्रण होगा। और हम अपनी फिल्मों में देख चुके हैं कितना इस तरह के इश्यूज लेके और क्या से क्या हो जाता है, कुछ और ही होने लगता है, लोग किसी और वजह से ही फिल्म देखने जाने लगते हैं। तो मुझे इस चीज का सबसे बड़ा डर था। तो मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैं इस दृश्य में किसी पुरुष को रखूंगी ही नहीं। मुझे लगा मुझे जो भी करना है आलेख के स्तर पे करना है, मैं किसी के ऊपर ये छोड़ ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने इस दृश्य को ऐसे किया कि जो बच्ची है वो स्टेज पर एक तरफ मंच पर अपनी अपनी चीखें, अपनी बेचारगी, अपना रोना, और कुल मिला के जो उसके बाल मन का रौंदा जाना है,
जिन वजहों ने उसे मनोविकार तक पहुंचा दिया कि वो आत्महत्या तक पहुंच गई, उसको रख पा रही है, दर्शकों तक पहुंचा रही है। और दूसरी तरफ थोड़ा दूर उसकी बड़ी बहन है जो इस पूरी घटना से गुजरी है, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, वो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अकेले अपने संवादों और अभिनय के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रही है। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको इस तरह से करूं तो शायद उस तरह का खतरा ना हो। और मुझे खुशी है कि इसको सबसे ज्यादा खेला गया, इस नाटक को। इसने बहुत शहरों में इसके वो स्टेज हुआ, बहुत पुरस्कार जीते इसने, और सबने इसको सही परिप्रेक्ष्य में ही जाना। और जिस तरह से मुझसे बातें होती हैं बाद में डायरेक्टर्स की, तो वो इसको लेके महसूस करते हैं और किस तरह से इस इशू पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि लेखन तभी सफल होता है जब अगर हम दुनिया में एक मानसिकता को भी बदल दें, तो मुझे लगता है कि हम कामयाब। जी जी बिल्कुल। और अंत हाजिर हो मितेश भी करना चाहते थे। अच्छा। मितेश की भी दिली ख्वाहिश थी कि वो अंत हाजिर हो, क्योंकि ये भी डायरेक्टर मैं है। रंगकर्मी हूँ मैम जी। ओके जी 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 जी। और तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी मीरा जी, कि आपसे परिचय मेरा मितेश नहीं करवाया है। अच्छा। बस एक पहली किताब जो है, जो अभी तक मेरे पास है, मैं इसको देने के मूड में नहीं हूँ। 3 अकेले साथ साथ ही सबके सोलो प्ले हैं। जी। तो और कोई सवाल अगर ऑडियंस से कोई हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कांचन जी कुछ बोले। कांचन जी। नहीं, आप इतनी सुंदर, मेरी आवाज आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल आ रही है। इतना सुंदर ये आपकी जो वार्तालाप चल रही है, इतनी मतलब मन को, और इतनी नई बातें, इतना जो आपने हिस्टोरिकल फैक्ट, जो ऐतिहासिक तथ्य बताए हैं, वो इतने सुंदर। कंचन आप म्यूट हो गई हैं। हैंग हो गया, एक मिनट, मैं कांचन जी को वापस लाता हूँ। हाँ, अब आए? हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो इतने मतलब ये ऐतिहासिक तथ्य पर जिसने, मुझे नहीं मालूम किसी और ने भी इस पर कलम रखी हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपने ऐसे अनछुए पहलुओं को छुआ है, और अपने कश्मीरी होने का दर्द भी आपने कहीं आके बता दिया, काली वर्ष में ही बताया, लेकिन बता दिया। ये आपने जो अपना कर्ज था कश्मीर होने का, ये भी आपने नहीं, मैंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं और भी लिखा है। अच्छा, मैं जरूर पढ़ूंगी मैं उनको। मैं वैसे तो मैं लखनऊ की हूँ, लेकिन मेरे अंदर कश्मीर रहता है। मैं बहुत ज्यादा, मेरा नमिता जी को मालूम, मेरा बहुत अच्छा, मेरा कश्मीरी एसोसिएशन से मेरा बहुत अच्छा गहरा संबंध है कंचन का, बहुत गहरा। कश्मीर सबके दिल में रहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका दर्द भी सबके दिल में रहे। कश्मीरी और बहुत सारे कश्मीर तो खैर वो है, अलग एक चीज ही है, लेकिन बहुत सारे कश्मीरी जो राइटर और बहुत अलग अलग फन में संगीतकार, और मैं अब सबका नाम यहाँ पर नहीं ले पाऊंगी, उतने सारे लोगों का। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आपने इतना सुंदर लिखा है। लेकिन मैं आपसे एक पर्सनल सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपका कब से साहित्य में इतना रुझान हुआ, और आपका जो ये जो रिसर्च करने की जो आपकी जो मादा है, जो आपका जो ये है, ये कब से आपकी इतनी डेवलप हुई? आपने इतने सुंदर चीजों को इतनी छोटी से उसमें आपने मतलब गागर में सागर आपने कैसे भर दिया? मैंने बहुत देर से लिखना शुरू किया, बहुत लेट। कहना चाहिए कि मैंने पीएचडी जब की, तो उस दौरान मैंने गहराई से महिलाओं के, क्योंकि मेरा जो विषय था वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक और हिंदी पत्रकारिता था। तो हिंदी पत्रकारिता ने क्या रोल निभाया महिला दशक में, महिलाओं को किस तरह से उनके समाचार लिए, कितना बायस था, ये सब मुझे वो वर्ष और दशक, इन पूरे 11 सालों में देखना था। तो इस दौरान मैं बहुत सी चीजों से गुजरी, और मैंने पहली बार इन औरत के जीवन संघर्ष को, दर्द को एक अलग नजरिए से देखा। कहना चाहिए कि मेरी आंखें खुली और मैं समाज को जानने, समझने, महसूस करने लगी। और तब सही मायने में मैं अपने प्रसंगों को भी उससे जोड़ कर देखने लगी, औरों के भी ये सब देखा। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो देखिए, वो सिर्फ हमारा दर्द नहीं होता है, हमारा भी हो सकता है, हमारे अपनों का भी होता है, परायों का भी होता है। अब मैंने कसाई की पत्नी पर नाटक लिखा, कहानी लिखी, तो एक परकाया प्रवेश होता है जिसके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के दर्द को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हर दर्द तो हमारे नहीं हो सकते, तो हम किसानों पे लिखेंगे। लेकिन
जो राइटर है, जो कवि है, जो लेखक है, लेखिका है, वो दूसरे का दर्द जब खुद महसूस करे तभी उस दर्द को अपने कलम से निकाल सकता है, वो अपनी तो कलम जी, में पिरो जैसे मैंने सकता पहले है। भी कहा था कि हाँ, वो दर्द, वो स्थितियां सारी रूह तक उतारनी पड़ती हैं, उनमें जीना हाँ, पड़ता है, तब जाके कुछ उस तरह का हो पाता है। मतलब तब बहुत दिनों तक खुद से, अपने माहौल से थोड़ा अनमना सा रहना पड़ता है। पूरी तरह तो आप नहीं कट सकते, एक महिला होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी है, होती है, बच्चा है, फिर मैं नौकरी करती थी, लेकिन हाँ एक अनमनापन एक आ जाता है। लेकिन संवेदनशीलता का जो गुण महिला होने के कारण ईश्वर ने हम लोग को दिया है, वो उसके लिए भी हमको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जी बिल्कुल 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 संजन, एकदम बिल्कुल सही का, बहुत कुछ मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन एक सवाल मेरा रह गया है मीरा जी, वो आपको देना पड़ेगा जवाब। समय थोड़ा निकल रहा है, लेकिन वो सवाल तो बहुत जरूरी है। मोहन राकेश रंगमंच की दुनिया के एक स्तंभ है। रंगमंच में उनके नाम से इतिहास का एक युग माना जाता है, और आपने मोहन राकेश जी का अधूरा उपन्यास उनकी मृत्यु के बाद पूरा किया है, जिसका नाम है कांपता हुआ दरिया। क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा, इसमें दरियाई घोड़ा लिखा है, लेकिन कांपता हुआ दरिया जो आपका जो उपन्यास आपने किया, तो इससे कई चीजें हैं। पहली चीज, जब आपको ये कहा गया, ये जिम्मेदारी दी गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि मोहन राकेश जी का उपन्यास आप पूरा कीजिए, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? और उसको पूरा करने के दौरान आपके अनुभव कहिए, या आपकी चुनौतियां क्या रही? ये प्रस्ताव मुझे जो मोहन राकेश की रचनाओं के संपादक हैं डॉक्टर जयदेव तनेजा, उनकी ओर से, और राजकमल प्रकाशन के जो महेश्वरी जी हैं, उनकी ओर से मिला था। लेकिन हाँ, जब पहली बार उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं आप ऐसा कीजिए, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव है ही नहीं। मैं कैसे कर सकती हूँ, मोहन राकेश कोई भी कैसे कर सकता है? और की सोच जी को अपने में ढालना। जी हाँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, देखिए ये मुमकिन नहीं है। तो फिर तनेजा जी ने कहा कि ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन एक चीज है कि आप इसको पढ़ लीजिए, अधूरे उपन्यास को। मैंने कहा हाँ, ये पढ़ के तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने वो अधूरा उपन्यास पढ़ लिया। अच्छा। There are some people in the audience who want to speak. Sangeeta Ramnath Deshmukh. इनका मिस्टर बच्चन जवाब हो जाए, फिर हम ले लेते हैं उनका। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने वो पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, तो आप यकीन नहीं मानेंगी कि मैं जैसे एक सम्मोहन सा होता है, वैसा हो गया। और मतलब मैं मान ही नहीं पाई कि ये जो उपन्यास है, लगभग 100 पेज छपे हुए थे, ये किसी गैर कश्मीरी ने लिखा है। इतना ज्यादा कश्मीर और इतना प्रामाणिक, और वो भी वो उपन्यास जो था कश्मीर के हांजियों के जीवन संघर्ष पर है, उनके सुख दुख है उसमें। हांजी जो वहां पे डूंगों में रहते हैं और हाउस बोट चलाते हैं, अच्छा, जिन हाउस बोटों में सैलानी जाके रहते हैं, उनके अपने घर भी नहीं होते, वो उस दरिया में ही उनका घर है, वो सारी जिंदगी उस दरिया में ही रहते हैं, वो जमीन पे घर नहीं बनाते हैं। तो उन हाजियों के जीवन को उन्होंने कितनी करीब से जाना होगा, कैसे और उस पूरी घटनाक्रम के साथ, और इतनी बढ़िया शैली है उनकी, ऐसी भाषा, ऐसी शैली, कि मैं उसके साथ ऐसा लग रहा था कि मैं भी शिकारा में बैठी और मैं भी बह रही हूँ दरिया में। और अचानक मैंने पाया कि बीचों बीच दरिया, हम तो अकेले छूट गए, क्योंकि मोहन राकेश तो गुम चुके हैं। तब मुझे बेचैनी सी हुई कि यहाँ से किसी तरह तो किनारे आना होगा। फिर मुझे लगा कि जब कोई पढ़ेगा तो वो ऐसा ही महसूस करेगा, तो क्यों ना मैं कोशिश करके देखूं। तो मैंने तनेजा जी से कहा कि मैं इसकी कोशिश करके देखती हूँ। उन्होंने कहा हाँ जरूर। मैं कश्मीरी थी, कश्मीरी भाषा संस्कृति अच्छी तरह जानती हूँ, वहाँ का मुहावरा जानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हाजियों का जीवन संघर्ष था, तो मुझे लगा कि न्याय तभी होगा जब मैं एक बार जाऊं वहाँ, उनके जीवन को बहुत करीब से देखूं। तो मैं 10-15 दिन के लिए श्रीनगर गई, वहाँ हाजियों के साथ बहुत
मुलाकात हुई, कई बार मिली, बातें हुई, उनकी संस्कृति, उनके पुराने हालात वो सब जाना, उनके टिप्पणों में गई, चाय पी, मतलब वो भी एक अलग तरह का माहौल था। और खूब खूब कश्मीरी बोली उनके साथ, और उनकी जो ठेठ कश्मीरी है उसका रस भी लिया। तो वो सब मैंने किया। उसके बाद जब पलट के मैंने करना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो अधूरा उपन्यास है वो मेरे सामने है, उससे मैं बंधी हुई हूँ कि वो तो मुझे लेना ही है, लेकिन बाकी के लिए मैं मुक्त हूँ। तो ये जो बंधन और मुक्ति का एक ताना बाना सा है, इसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा है, क्योंकि कहीं हम बंधे हुए भी हैं, हमें ये करना ही नहीं है, हमें तो उसी तरह से चलना है, और आगे का आप जो मर्जी करिए। तो ये कहने के लिए होता है, लेकिन वो बंधन लगातार आपके साथ एक रहता है। और सोचना शुरू किया तो बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था, लेकिन स्पष्ट कुछ भी नहीं था। फिर मैंने, क्योंकि बचपन से ही मोहन राकेश जी को पढ़ा है, तो उनका जो साहित्य है, उसकी विशेषताएं, उनके कैरेक्टर्स की विशेषताएं, उसके उजाले में मैंने कई बार उस अधूरे उपन्यास को पढ़ा, और जो उसके अंधेरे कोने थे, जो छूटे हुए सूत्र थे, उनमें से मुझे लगा कि मैं कौन से धागे उठा सकती हूँ, आगे बुन सकती हूँ। मोहन राकेश ने इसे 1947 से शुरू करके वो 1950 तक लाए। तो मेरे सामने सबसे पहली चुनौती ये थी कि मैं इसे कहाँ तक ले जाऊं। कहाँ तक, 50 से आगे कहाँ तक? हाँ, है ना, आज तक भी ला सकती थी, तो कहाँ तक ले जाऊंगी। तो मुझे लगा नहीं, वो एक बहुत बड़ा सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि लोग वहां असरअंदाज हो रहे हों, उनकी जीवन को फर्क पड़ता हो। तो मैं उसे, क्योंकि यहाँ 47 में हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन कश्मीर में अभी राजशाही थी, हाँ। और वो कानूनी तौर पर नवंबर 1952 में खत्म हुई। तो मैंने वही पीरियड सुना जब वहां एक मील का पत्थर था। वो पीरियड एक बहुत बड़ा बदलाव आया था कि उन्हें भी आजादी मिली थी राजशाही से, वहां तक लाई। तो उस दौरान जो कश्मीर जो जाते थे, रावलपिंडी के रास्ते से जाते थे, और विभाजन में वो रास्ता अचानक बंद हो गया था। तो सैलानियों का आना बंद हो गया, गुर्बत थी, हाउस बोट बिक रहे थे, बुरी हालत थी। तो ऐसे में जो मेरी नायिका है प्रतीक, वो प्रतीक के तौर पर उसका डूंगा जो बिक रहा है, बिक चुका है, और वो टूट रहा है। तो जो हथौड़े, सॉरी डूंगा नहीं, हाउस बोट, तो जो इतना भारी हाउस बोट जब टूटता है, उस पे हथौड़े पड़ते हैं, वो इतना भारी है, वो जब हिलता है तो नीचे का दरिया कांपने लगता है, वो लहरें इधर से उधर जाती है। तो वो दूर से देखती है, उसे लगता है कि दरिया कांप रहा है, और उसमें जितनी चीजें दिखाई देती हैं फिर कांपती दिखाई देती हैं। तो उसे आसमान भी कांपता दिखता है, उसे आसपास के पहाड़ भी कांपते दिखते हैं, और जो आसपास जितने हाउस बोट खड़े थे उनकी सहमी सहमी कांपती हुई परछाइयां दिखाई देती हैं। तो मैंने दिखाया कि देखो पूरा कश्मीर कांप रहा है, और वो इंतजार कर रहा है एक नए कश्मीर का। यहाँ पे आके उसका मैंने अंततः अंत किया। बाकी तो पाठक बताएंगे कि वो कितना सफल रहा, ये शीर्षक मोहन राकेश जी का दिया हुआ है या? हाँ, शीर्षक उन्हीं का था। अच्छा। उसी को मैंने, उस बिंब को मैंने आगे बढ़ाया और इसी तरह का अंत किया। बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने इसका इस्तेमाल अंदर कुछ नहीं किया था। हाँ, तो ये इस्तेमाल मैंने किया कि अर्थ आपने दे दिया इसको, इस तरह से लाऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेरा अपना कश्मीर था, फिर मेरे प्रिय मोहन राकेश थे, तो आनंद तो मुझे आया ही। हालांकि बहुत बड़े जूतों में मैंने पांव डाले थे, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रचनात्मक मतलब आनंद रहा, सुखद रहा। बिल्कुल। अब जब ये भी कहा जा सकता है कि आपके इतने प्रिय लेखक, मतलब हम सभी के ही हैं, मोहन राकेश जी को तो कौन वो कह सकता है, आपने एक सही अर्थों में उनको श्रद्धांजलि दी, उनके उपन्यास को पूरा करके। जी कोशिश तो की है, पर अब देखिए कितनी सफल हुई है वो। जी, नितेश कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जाती तौर पर आप किन किन साहित्यकारों से प्रभावित हैं? वैसे तो इतिहासकारों से भी हो सकती हैं आप, किन साहित्यकारों से आप जाती तौर पर प्रभावित हैं, मुतासिर ज्यादा हुई? क्योंकि आप एक साहित्य में हैं, आप रचना करती हैं, तो आप भी कोई होगा जो आपका फेवरेट होगा, तो आप अगर आप उनके बारे में कुछ बताएं। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक नहीं होता, बहुत होते हैं, है ना। और फिर कितनों का नाम लें, कितनों का नाम ना लें तो ये भी एक अध्याय होता है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि बहुतों से प्रभावित हूँ। जैसे कहना चाहिए, जैसे एक अंधेरे कमरे में, बिल्कुल घुप अंधेरा है, वहां एक बिल्ली है,
दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन उसकी आंखें चमकती दिखाई दे रही। क्या ऐसे ही बहुत से प्रभाव होते हैं हमारे मन पे, हमारे जहन पे, जो वहां होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, वो समय पर ही कभी कभी आते हैं। बहुत सुंदर आपका ना जो ये प्रतीकात्मक शैली है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत। थैंक यू। अभी भी आपने बैठे बैठे जो बिल्ली का उदाहरण दे डाला। सोनू जेसवानी ने कुछ लिखा हुआ है, कैन यू रीड दैट नमिता? सोनू जेसवानी, नारी विमर्श के अनेक जी 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 जी, मैं पढ़ती हूँ। रीड इट आउट। नारी विमर्श के अनेक आयाम आपकी नाट्य कृतियों में बहुत प्रभावशाली रूप से प्रतिबिंबित हुए हैं। आपके नाटकों का कथ्य और शिल्प आपको 21वीं सदी की सशक्त नाटककार के रूप में स्थापित करता है। ये डॉक्टर जेसवानी ने कहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और ये तो संगीता रामनाथ जी जो है, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है। एक सेकंड में देखती हूँ मिस्टर बच्चन। जी मैम, नहीं वो हो गया है। वो दरियाई घोड़ा नहीं है, कांपता हुआ दरिया। जी, कांपता हुआ दरिया। जी नमस्ते। She wants to speak. संगीता जी बोलिए। जी जी नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम जी मीराकांत जी मैम नमस्ते, और नमिता मैम नमस्ते। नमस्कार। जी मैम से मेरी बातें होती रहती है। मैं शोधार्थी हूँ और उनके 2 नाटकों पर मेरा अच्छा, काम। आप वो संगीता है। ओके ओके जी। तो इसलिए सब जिज्ञासाओं की पूर्ति मैम ने की है। मैंने प्रश्न इसीलिए डाले क्योंकि सबको पता चले कि मैम का काली बर्फ नाटक एकदम रोचक है। और दूसरी, उन्होंने कहा था कि तालों में शहर, ये कहानी वो लिख रहे थे उस दौरान, और उन्होंने कांपता दरिया के बारे में भी मेरे साथ बातचीत की थी। इसीलिए मैंने वो सवाल डाले थे। और मैम बहुत मधुर भाषी है, हमारी प्यारी और मनपसंद एकदम शांत लेखिका है। और मैम आपको एक सवाल है। नेपथ्य राग में खना जो है, बंधु काका को पूछती है, देखिए वो अरुंधति, सप्त ऋषियों के पास का तारा अरुंधति। मुझे मैं जानना चाहती हूँ, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उसके पीछे एक कुछ कहानी है। जी हाँ, कहानी तो है। जी जी। उनको अपने पतिव्रता धर्म की वजह से अरुंधति को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला था। तो जहाँ तक मुझे अभी याद पड़ रहा है, शायद वो जो बंधु काका थे वो खना को यही कहते हैं कि खना कहती है कि देखो अरुंधति को स्थान नहीं मिला था इतना उच्च, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? तो वो कहते हैं उसको मिला, लेकिन इसी पुरुषवादी सोच की वजह से, पतिव्रता धर्म की वजह से, अपनी किसी मेधा की वजह से नहीं मिला। तो इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में जो संघर्ष है वो थोड़ा मुश्किल है महिलाओं के लिए। ये वो उसे समझा रहे थे कि इतना आसान नहीं है कि तुम्हें राजा ने बुलाया और तुम्हें वो पद मिल ही जाएगा। और अंततः ऐसा ही होता है। जो जितने सभासद थे वो कहते हैं कि अगर वो राज्यसभा में आएगी तो पहले उसकी जिह्वा काटनी पड़ेगी। यानी ऐसा तो नहीं है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि राज्यसभा में कोई महिला नहीं होगी, उनके चषक भरती होंगी, उनका मनोरंजन करती होंगी, लेकिन अपनी मेधा के बल पर उनके समकक्ष बैठ के फैसले लेती महिला उन्हें गवारा नहीं थी। एक विदुषी महिला को स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने शर्त लगा दी। और यहाँ पे ये जबान काटना जो है प्रतीकात्मक है, अभिव्यक्ति जी, कि बोलती औरत नहीं चाहिए हमें। तो वो किसी को नहीं मालूम कि, क्योंकि ये भी मतलब कहानी है, ये किसी को नहीं मालूम कि जबान कटी या नहीं कटी, क्योंकि उसमें जो नाटक है आपका, उसमें दादी कहती हैं कि अरे मैंने तो कुछ और सुना था। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी कि ये जो मिथक कथाएं होती हैं, वो युग युग से चली आती हैं, उनके कई वर्जन भी होते हैं, अलग अलग सोच होती है लोगों की, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में रहती हैं और चलती आती हैं। तो सवाल ये है कि कम से कम वो हमें ये तो बताती है कि समस्या कब से चल रही है ना, सदियों से। देखो कितना फासला है सदियों का। तो ये सब दिखाने के लिए, और उसका हुआ क्या ये, क्योंकि वो मिथक है तो किसी को मालूम ही नहीं। हालांकि हमारे देश की ये खूबसूरती है कि मिथक और इतिहास के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है। बिल्कुल, हाँ, कब मिथक इतिहास में चला जाता है, कब इतिहास मिथक में आ जाता है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर सुधा जानकी,
बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कहना चाहता है? मिस्टर मर्चेंट, सुधा जांगीर, धन्यवाद। सुधा जी है। हाँ, डॉक्टर सोनू जेसवानी। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मीराकांत मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार। और नमिता मैडम। जी नमस्कार। एक छोटा सा प्रश्न मीराकांत मैडम जी से कि डॉक्टर सुधा जांगीर उनको पीएचडी करवाते वक्त मीराकांत मैडम और नादिरा बब्बर की नाट्य कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन विषय था। तो मैडम की कृतियों को हमने भी पढ़ा, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा। उसमें एक बात सिर्फ रह गई कि मैडम के नाटक जहाँ ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य लिए हैं, वहाँ जो प्रमुख नारी पात्र है वो बहुत सशक्त हैं। उत्तर प्रश्न, नेपथ्य राग आदि आदि। लेकिन वही जहाँ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो नाटक है, जैसे जो अभी आपने कहा पारिवारिक, जैसे हिंसाचार है, और भी एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो एकल नाटिकाएं हैं, छोटे छोटे नाटक हैं, उसमें लगभग मानसिक रूप से वे असंतुलित हो जाते हैं। कागजी बुर्ज और भी एक दो, तो जहाँ के आधुनिक युग में उनको और सशक्त दिखाना चाहिए था, वहाँ कहीं ना कहीं वे पात्र बहुत अकेले पड़ जाते हैं और उनका अंत बड़ा दुखांत है। तो ऐसा क्यों मैडम जी? नहीं देखिए, जो गली दुल्हन वाली में तो वो सशक्त है, वो बदला लेती है, वो अंदर जाती है घर में जी, और वो कहती है कि अगर तमाचा मारेगा तो तमाचा पकड़ लेती हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो विरोध करती है। और धामपुर में भी देखिए, वो धामपुर की बस में नहीं चढ़ती है, नहीं चढ़ती है, उसको टिकट दी जाती है लेकिन वो चढ़ती नहीं है। मतलब उसने विरोध किया इसका कि तुम मुझे वापस उस ससुराल में कहाँ भेज रहे हो जहाँ मेरे साथ इतना अन्याय होता है, हिंसा होती है। जी, तो ये मुझे तो लगता है ये सशक्त कैरेक्टर्स हैं। हाँ, जहां तक कागजी बुर्ज की बात है, तो देखिए हमें सिर्फ अगर महिला का इशू लाना है तो सिर्फ ये तो नहीं देखना कि सशक्ति हो महिला। जी, सवाल ये है कि वो मुद्दा आपके दिल तक कैसे पहुंचे, आपको कैसे हिलाए, है ना, और आपको सोचने पे मजबूर करे। अगर उस कागजी बुर्ज ने आपको सोचने पे मजबूर किया कि वो इन हालात पे पहुंची तो ये हालात गलत थे, तो मुझे लगता है कि काफी है। अगर नहीं किया तो वो फिर वो अलग बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ मीरा जी आपसे कि महिला को सशक्त या अशक्त बताना मुद्दा नहीं है, मुद्दे को बताना, मुद्दे को पहुंचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए जीवन संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है ना, तो कहीं पे महिलाएं स्टैंड ले पाती हैं, कहीं पे नहीं ले पाती हैं, मगर उसकी वजह से मुद्दे की अहमियत तो खत्म नहीं हो जाती है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हम ये बताते हैं कि इसको एक स्टैंड लेना चाहिए था, तो आगे कैसे स्टैंड लिया जाएगा। तो बिल्कुल बहुत सी बातें होती हैं। जी सुधा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सुधा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं क्या? क्योंकि फिर हम उन्होंने कुछ लिखा है। नहीं नहीं लिखा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा है, मीराकांत मैडम आपके नाट्य कृतियों पर शोध कार्य करते हुए असीम समाधान प्राप्त हुआ। जयशंकर प्रसाद की उपरांत उनकी धाती को मोहन राकेश और तदंतर आपने सहेज कर रखा, ये बात बिल्कुल सही लगती है। अरे ये कुछ ज्यादती हो गई। नमिता जी, I was thinking that I will request Mitesh ji to say the vote of thanks if you feel that we have finished the conversation. Mitesh ji, would you like to please propose the vote of thanks to all? Oh my God. Okay, sure sir. या मतलब बिल्कुल मेरा ऑनर है ये। मैम, सबसे पहले मतलब बहुत 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 धन्यवाद कि आप जुड़ी, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं आपको सुन पाया। बहुत ही मीठा बोलती हैं आप, अनडाउटेडली मेरे ख्याल से यहाँ 20-25 लोग ऑलरेडी कह चुके इस बात में, फिर भी दोहराऊंगा, बहुत मीठा बोलती हैं आप। आपको जानकर आपके सर्जन के पीछे जो आपके अलग अलग चैलेंजेस रहे उनको जानकर और अच्छा लगा। उम्मीद है आपकी नई कृतियां जल्द से जल्द हमें प्राप्त होंगी। हम आवाज दिल्लियां मैंने ऑलरेडी मंगवा ली है। बाकी भी मुझे उम्मीद है कि जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं वो आपके मिथक और इतिहास के गड्ढ-मड्ढ होने पर जो कमाल आपने किए हैं संप्रेषण से अपने नाटकों, कहानियों और उपन्यासों में,
मुझे उम्मीद है कि वो सब भी उनको खुद पर्सनली पढ़ेंगे और जरूर आपको लिखेंगे भी। तो एक बार मेरी फिर तरफ से भी आप लोगों को शुक्रिया, क्योंकि ऐसी ऑडियंस और इतने बढ़िया सवाल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप सब लोग बहुत सोचने वाले लोग हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और रंग की दुनिया में आप ने बहुत ज्यादा बड़ा योगदान दिया है, एक से एक उत्कृष्ट नाटक देकर हम पर, तो बहुत उसकी भी कृपा आपने रखी, तो उसके लिए भी अलग से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी, मेरी तरफ से भी। आप जितना मीठा बोलती हैं, चूंकि आपसे इतना संपर्क किया मैंने, आप दिल से भी उतनी ही मीठी हैं, उतनी ही अप्रोचेबल हैं। ऑडियंस से कहूंगी कभी भी अगर बात करना चाहें तो जरूर कीजिए, बहुत कुछ सीखने के लिए है। अच्छा। आप एक एक वाक्य में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मर्चेंट। मैं आप नमिता जी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा कंडक्ट किया। 1 घंटा 30 मिनट हो गया, समझा भी नहीं टाइम कैसे पास हुआ। जी बिल्कुल। हमें हिंदी की दुनिया में आप ले चले, दिल्ली की हिंदी की दुनिया में। मैंने नोटिस किया है कि फारूक अच्छी हिंदी बोलने लगे आज। कुछ तो फायदा हुआ इनको भी। So, on behalf of Gyanadab and Nityasha Foundation, I thank all of you for coming today to the program. The QR code is there on the screen. If you want to take a screenshot of the QR code and send me, I've already put my phone number in the chat box. My phone number is 9823010962. किसी को भी हमारे ज्ञानादब में मेंबर बनना है, आप मुझे हाई लिख लीजिए, and we'll be making you part of Guldasta Urdu Hindi. And all these type of programs will bring to your doorstep. मीरा खान जी, आप दिल्ली से जूम जरिए हमारे यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। और नमिता जी पुणे के उस ओर से आए जूम पे, उसके लिए, और जितने भी श्रोता आज आए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक कीमती समय सैटरडे का इवनिंग का आपने टाइम स्पेंड किया, और मुझे लगता है ये वन ऑफ द यूनिक लिटरेचर प्रोग्राम्स ऑफ ज्ञानादब है। And all the things will be on Facebook recorded. It will be on YouTube by Monday. And anybody wants a direct link, please send hi to my phone number, which I've said just now in this. Immediately after the programs ends, I'll be putting on all the Gyanadab and all the links, the Facebook link, so people can see it as at their peaceful. So with this, I will take your permission to end the program. Bilkul. Nitesh and everybody, thank you very much. Thank you so much. Thank you, Namita, नमस्कार नसीमा जी। Nitesh, and Thank you. Thank you so much.